کسی بھی معاشرے میں امن کو برقرار رکھنے میں پولیس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور کسی بھی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں جیسے آپریشن ونگ اپنا کام کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن ونگ کا بھی بہت اہم کردار ہے. پولیس کس طرح سے انویسٹیگیشن کرتی ہے, ٹیکنالوجی کس طرح سے اس کو ہیلپ کرتی ہے, سیف سٹی کے کیمراز کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اسی میں بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مس ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری. میم کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. میم سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پولیس انویسٹیگیشن کا عمل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ پولیس انویسٹیگیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے FIR سے. پہلے کوئی بھی یا تو 15 کی کال ہوگی, وہاں پہ ہمارا پولیس کا ملازم جائے گا, اس کے بعد یا کوئی اپلیکیشن لے کے پولیس اسٹیشن میں آئے گا, اور جب FIR رجسٹر ہو جائے گی اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. دین اٹ از مارک ٹو سم IO. اس میں ASI ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں, اور اٹ کین بی انسپیکٹر ایز ویل. اس کو مارک ہوگی, اس کے بعد وہ رابطہ کرے گا مدعی کے ساتھ. مدعی سے رابطہ ہونے کے بعد پھر اس کے پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں سے یہ عمل سٹارٹ ہوتا ہے. اٹس اے لینتھی پروسیس. اس کے بعد رابطہ ہونے کے بعد وہ بیانات لے گا سب کے, اس کے بعد نقشہ موقع بنے گا, پھر اس کے بعد جو وہاں سے چیزیں ملیں گی اس کی فرد محفوظ کی بنے گی, گواہوں کے بیان ہوں گے, PFSA کو کال کیا جائے گا, وہاں سے ایویڈنس کلیکشن ہوگی. سو دس ہول پروسیس اسٹارٹس آفٹر رجسٹریشن آف. میم کسی بھی کیس کا کمپلیٹ کرنے کا جو انویسٹیگیشن کا ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کیا آپ کو کوئی فکس ڈیز ہوتے ہیں کہ ایٹ اینی کاسٹ ان ڈیز میں ہم نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کو کلوز کرنا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی. ہر FIR کا ایک تو یہ ہے کہ جو FIR رجسٹر ہو جاتی ہے اس کا چلان سبمٹ کرانا ہوتا ہے 14 دن میں. یہ بیسکلی ایک ہمارا لاء کی یہ پروویژن انہوں نے یہی ہے اس کے اندر کہ میکسیمم جو ڈیز دیے گئے ہیں وہ 14 دن ہے. بٹ ایز یہ ہم بات کریں بہت پرانی, ایک سینچری اگو پہلے یہ بات تھی. ابھی امینڈمنٹ کرنے کی بھی ہمیں اس میں ضرورت ہے کہ ابھی جو ورک لوڈ ہے, پہلے رجسٹریشن آف FIRs کا جو آپ نمبر دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتا تھا. اگر 100 سال پہلے کی ہم اگر چیزوں کو ابھی اپلائی کریں تو اس لیے ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹی آتی ہے. انویسٹیگیشن ٹیکس ٹائم, جس میں اس کا ایک پروسیجر ہے بہت لمبا, جس میں ہر اینگل کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں ایک مضبوط چلان تیار کرنا ہوتا ہے سو دیٹ کنوکشن ہو سکے. تو اس کے لیے کیس ٹو کیس ویری ہو جاتے ہیں, لیکن جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ 14 دن کی ہم دیتے ہیں. لیکن میکسیمم جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ مہینے کے اندر ایک کیس ڈسپوز آف ہو جائے, اس کا چلان سبمٹ ہو جائے کورٹ میں, تاکہ اس کا پھر ٹائملی ٹرائل سٹارٹ ہو سکے. ٹھیک ہے میم, کیا سمجھتی ہیں کہ سیف سٹیز اتھارٹی کے جو کیمرہ جات ہیں ان کے جو ایویڈنس ہیں وہ کتنے معاون ثابت ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں؟ یہ بڑے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس میں اسپیشلی جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے سیف سٹی کے کیمراز کی. وہاں مشکل آتی ہے جہاں پہ ڈیڈ اینڈ آ گیا یا جہاں پر کوئی سیف سٹی کا کیمرہ نہیں ہے, وہاں پہ ہمیں بہت مشکل آتی ہے. دیکھیے اس کے 2 فائدے ہیں. اب جب ایک تو جو کنسرن ایگریوڈ بندہ ہے جب وہ IO کے ساتھ جاتا ہے, ایک تو اس کی سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, بیکاز مینٹل سیٹسفیکشن از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. اس کو یہ خود جا کے دیکھنا چیزوں کو, اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اس کو ایک سینس آف سیکورٹی محسوس ہوتی ہے, اس کو ایک سینس آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ خود جب چیزوں کو دیکھتا ہے. سیکنڈلی آف کورس ایک جو ہمارا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے جس پہ ہم کلیکشن آف ایویڈنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں وہ ویڈیو مل جائے اینڈ دس از این ایڈمیسیبل ایویڈنس ان دا کورٹ, تو وہ جب IO کلیکٹ کرتا ہے تو اس کی بہت ایویڈینشلی ویلیو بہت زیادہ ہے. میم ٹیکنالوجی کا دور ہے, کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے انویسٹیگیشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے اور انویسٹیگیشن کی شفافیت کو, اس کی جدت کو برقرار رکھنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ فرسٹ آف آل آئی وڈ ٹیل یو آئی بلیو ان بیسکس. بیسکس سے ہم جب اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ہماری بیسکس ٹھیک ہوں تو پھر اوپر جب ایک بلڈنگ کی بنیاد اچھی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر بلڈنگ بہت اچھی بنتی ہے. جب آپ بنیادی کام جب ٹھیک کر لیتے ہیں, جو تفتیشی کے کرنے والے ہوتے ہیں اور جو آن گراؤنڈ کرنے والے ہوتے ہیں, جن کو جو ایک PPC میں اور CRPC میں جو پراپر ہمیں ڈسکرپشن دی گئی اس کو فالو جب ہم کر لیتے ہیں, اس کے بعد دس از آئسنگ آن دا کیک. اس میں بہت ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کیس اگینسٹ, جتنے بھی کیسز ہیں اگینسٹ پراپرٹی ہو یا اگینسٹ پرسن ہو, اس میں جو ٹیکنالوجی کی ہیلپ ہے, CDRs, لوکیشنز, کیمراز, جس سیف سٹی کے ہم کیمراز کی بات کر رہے ہیں, اس کی اویلیبلٹی ہونا, فوٹیج مل جانا, ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہونا جو کورٹ میں ہم پریزنٹ کر سکیں, یہ میرے خیال سے یہ جتنی زیادہ اس کے اندر وہ ایک جدت آتی جائے گی اتنی ہمیں ہیلپ آؤٹ مزید ہوتی جائے گی. بیکاز دیکھیں اب جب سے PFSA آیا ہے, اب ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ جب ہم ایک چیز ایمٹیز جو ہمیں ملتی ہیں اور ہم اس کو ویپن کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو دس از این ایویڈنس وچ از irrefutable. تو irrefutable ایویڈنسز ہیں جو ٹیکنالوجی سے ہمیں ملتے ہیں, دیٹ از ایکسٹریملی ہیلپ فل ان انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی اینڈ
these evidences are admissible in the court as well, and that is very important for the conviction. मैम सीएम पंजाब के इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी SSOIU, ये क्या यूनिट है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये बनाए गए स्पेशल अटेंशन देने के लिए टू वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें बच्चे आ जाते हैं, ख़वातीन आ जाती हैं। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर सेक्शंस हैं, इसमें रेप केस आ जाते हैं, इसमें ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी की जाती है 354 आ जाता है, और इसके अलावा जो बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं ये वो है। सो दीज केसेस ये जो सोली डील करते हैं विद द फीमेल इश्यूज़ जो मेन हमारे हैं। एंड बीइंग लाइक CM पंजाब जो है, शी इज़ अ फीमेल एज़ वेल, तो वो इस फीमेल की तरफ, जो इस इशू की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन देती हैं। अब देखिए CM पंजाब खुद एक खातून है और वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देती हैं फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। एंटी रेप एक्ट 21 के तहत ये SSOIU दैट इज़ स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए गए हैं। अब लाहौर में इस वक्त 6 डिवीजन्स में 6 यूनिट्स काम कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है स्पेशली कि जो भी ऐसा मुकदमा दर्ज होता है उसमें एक मेल आयु के साथ एक फ़ीमेल आयु ज़रूर काम करती है। तो जितनी भी रेड्स अगर होंगी उसमें जो भी कोऑपरेशन होगी, हैंड होल्डिंग ऑफ द विक्टिम, दैट इज़ बीइंग डन बाय द फीमेल ऑफिसर। सो इसका मकसद ये था कि एक फ़ीमेल्स को सेग्रीगेटेड, या उसको जिस तरह मेल्स के साथ डील करने में इशू आता है या वो थोड़ा हिचकिचाती हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, तो उसको दूर करने के लिए एक फ़ीमेल ऑफिसर ज़रूर साथ अटैच होगी। जैसे रेप केसेस तो करती फीमेल्स हैं, इसके अलावा अगर अगवा का मुकदमा है तो उसमें अगर रेड्स हैं या कोई पूछगिछ करनी है तो एक फ़ीमेल ऑफिसर वुड बी अटैच्ड विद द मेल ऑफिसर। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट कि इसको हम यूनिट को इस तरह से कर दिया कि जो इसके डेडिकेटेड आईओज़ हैं सिर्फ वही इसकी तफ्तीश करेंगे जो ऐसे मुकदमात होंगे। अगर कोई विक्टिम अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस हवाले से भी कोई प्रोसेस है आपके पास कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील कर सकते हैं? देखिए, अब ये चीज़ समझने की बड़ी ज़रूरत है। हु इज़ द विक्टिम, दैट इज़ टू बी डिफाइंड। मुद्दई की FIR हमेशा ठीक नहीं होगी, और मुलजिम जिसको एक्यूज़ किया जाता है वो हमेशा गलत भी नहीं होगा, राइट। सो हमने तो बैलेंस के दोनों साइड्स पे देखना है कि मेरिट करना है। अब उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये तब्दीली तफ्तीश जो है वो सिर्फ मुद्दई के लिए नहीं, भी सिर्फ खाली मुद्दई के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर द एक्यूज्ड ऑफ द FIR एज वेल। कि अगर मुद्दई को ये लग रहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मुलजिम को कोई ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है, या वो तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, या मुलजिम है उसको ये लगता है कि मुझे गलत इस मुकदमे में या मेरी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही है, मुझे गलत एक्यूज़ किया जा रहा है, तो दोनों तरफ से एप्लीकेशन दी जा सकती है हमारे ऑफिस में फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें ये होगा कि हम एक हमारा बोर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, मुद्दई को और मुलजिम को, जिसकी तरफ से भी एप्लीकेशन आई हो, बट वी कॉल बोथ ऑफ देम, मुद्दई भी और मुलजिम भी, और साथ में जो तफ्तीशी अफसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है केस का, वो भी साथ आता है। हमारे SP साथ बैठते हैं, हम एक बोर्ड करते हैं, एंड देन वी डिसाइड इन दैट बोर्ड कि वेदर ये जो इसका ग्रीवेंस है वो सही है, तो उस वजह से हम फौरी उसकी तफ्तीश चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बाउंड हो गया है, उसको उसके पास, मुद्दई के पास भी ये चांस है, मुलजिम के पास भी ये चांस है कि वो अपनी तफ्तीश चेंज कराने का उनके पास मुकम्मल राइट है, अगर वो उस तफ्तीशी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में, यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में नया इनिशिएटिव लिया गया है साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम यूनिट कैसे यहाँ पे काम कर रहा है? अनदर हमारा ये एक माइलस्टोन है, विच इज़ एज आई सेड, फीमेल्स का आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है। इफ़ आई एम सिटिंग ऑन दिस सीट, तो बीइंग अ फीमेल मेरी बहुत सारी मैं अंडरस्टैंड करूँगी ना कि फीमेल्स की क्या इशूज़ हैं। इसी तरह CM पंजाब के आने के बाद उन्होंने ही इस चीज़ को बहुत किया कि क्या करें फीमेल्स अगर उनको हरासमेंट का सामना है, क्या करें फीमेल्स अगर उनको कोई साइबर स्टॉकिंग कर रहा है। सो इस सारी के तनाजुर में साइबर क्राइम को एक साइबर क्राइम यूनिट तश्कील दिया गया है इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में। देयर इज़ अ फैसिलिटेशन सेंटर, यहाँ पर एक हेल्पिंग डेस्क बना दिया गया है। अब देखिए साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम है कि किसी भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी नेटवर्क के थ्रू कोई क्राइम किया जाए। इट कैन आइदर बी साइबर स्टॉकिंग, इट कैन बी हरासमेंट, इट कैन बी इवन साइबर टेररिज्म, इट कैन बी इसमें जो हेट स्पीचेस होती हैं वो भी आती हैं। जो भी ऐसा है जो डिवाइसेस या नेटवर्क के थ्रू एक क्राइम किया जा रहा है, दैट इज साइबर क्राइम। अब ये साइबर क्राइम यूनिट इस तरह के क्राइम को डील करेगा। उसमें आके एप्लीकेशन कोई भी, वो मेल्स को भी ये हो सकता है, लेकिन ये फीमेल्स की चूँकि ज़्यादा इसमें रेशो होती है,
फीमेल्स मेल्स आके अपनी एप्लीकेशन देंगे इस डेस्क के ऊपर, उनको एक ऑफिसर जो है वो रिसीव करेगा एप्लीकेशन को, उसको सुनेगा और उसकी वैल्यूएशन होगी, और उसकी जो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जो सही एक उसकी जो उसकी नज़र में जो लगेगा कि ये ठीक है, उसको वो रेफ़र कर देगा मुतलका थाने में और उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। सो दैट इज़ द होल पॉइंट कि एक साइबर क्राइम जो कि आम रूटीन ट्रेडिशनल पुलिसिंग से हटके है, उसको भी अब बेसिकली पंजाब में साइबर क्राइम को एक पंजाब पुलिस डील करेगी। मैम, अक्सर आप सरप्राइज़ विज़िट भी करती हैं, तो क्या समझती हैं कि वो सरप्राइज़ विज़िट आपका कितना हेल्पफुल रहता है, और विज़िट के बाद क्या चेंजेस आई अब तक? सो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? मेरा एक्सपीरियंस कभी कभी अच्छा तो नहीं वैसे ज़्यादातर रहता है, बिकॉज उसमें होता क्या पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ द, मैं ये अक्सर कहती होती हूँ कि सरप्राइज़ विज़िट वो ज़्यादा सरप्राइज़ या तो कभी मुझे कर देता है या मेरे स्टाफ को कर देता है सरप्राइज़। मकसद इसका देखिए, पहली बात मैं मकसद की बात करूँगी क्या होता है। आई डोंट वांट टू पनिश एनीवन, मैं ये नहीं चाहती कि मैं जाके किसी को रंगे हाथों पकड़ लूँ, सिर्फ ये सेंसिटाइज करने के लिए करते हैं कि देखें अवेलेबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है कि वो अवेलेबल होने चाहिए, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी अमला वो अवेलेबल हो। अवेलेबल होने के बाद ही काम नेक्स्ट शुरू होता है, और फिर उसके बाद वो थाने में बैठेंगे तो वो मिसले खोलेंगे, मिसलों का काम होगा। जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सुनेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ बैठेंगे, और फिर उसके बाद एविडेंस कलेक्शन होगी। वो सारा प्रोसेस उनके मौजूदगी से है। तो आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू मेक इट श्योर कि उनकी अवेलेबिलिटी थाने में हो। उसके बाद उनका क्या रवैया है, कोई ऐसे साइलिन जो आते हैं, जो जिनको हम कहना चाहिए कंप्लेनेंट्स आते हैं, वो अगर उनको कोई इशूज़ हैं तो वो एट द स्पॉट हल कर दिए जाएँ। और एक ये चीज़ रहे कि सरप्राइज चेकिंग का एलिमेंट हमेशा उनके ज़हन में रहे कि कभी भी हमारे थाने का विजिट हो सकता है। वी शुड बी अवेलेबल, वी शुड बी वर्किंग, वी शुड बी डीलिंग विद द कंप्लेनेंट्स, और उनके मसाइल को हल करें। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो पहले कभी कभी मैं खुद सरप्राइज़ हो गई जब मैंने सरप्राइज़ विज़िट किए, क्योंकि तफ्तीशियों की मौजूदगी समटाइम्स पहले इतनी इंश्योर्ड नहीं थी। तो अब चूँकि मुझे ये लगता है कि एक विज़िट से इंसान के अंदर मकसद तो बेहतरी लाना ना, मतलब आप ये समझती हैं कि जब से आपने विजिट करना स्टार्ट किया तो उनकी अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है, उनकी प्रेजेंस बेहतर हो गई है। एक उनको सिर्फ ये रहता है कि चले कभी विजिट हो जाएगा तो डराना या कुछ सजा देना मकसद नहीं है। मकसद है कि बेहतरी आए। एक देखिए ना, बच्चे को भी अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो होमवर्क नहीं करेगा, राइट? इट्स ह्यूमन नेचर। इट्स जस्ट कि हम एक कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं अपने सारी जूनियर स्टाफ के साथ, कि हम इन कोऑर्डिनेशन रहें, उनको भी ये पता हो कि कोई पूछ लेगा। और जैसे भी CM पंजाब के आप इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगी, तो आखिर में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि CM पंजाब के बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से। तो क्या समझती हैं कि ये पुलिस स्टेशन कितना मददगार साबित होगा ख़वातीन के लिए, क्योंकि इसका बेसिकली पर्पज़ ही है कि औरत को पुलिस स्टेशन के चक्कर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने ना पड़े, उसकी ज़्यादा जो इशूज़ हैं वो 15 कॉल पर ही उसके हल हो जाएँ। तो इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहेंगे? इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो वर्कलोड एक तो जो बाकी पुलिस स्टेशन पे है वो कम होगा। उसके अलावा जो एक इसका VPS का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जस्ट एक ही रिले सेंटर बन गया ना, एक IO के दरमियान और एक कंप्लेनेंट के दरमियान, उसको गाइड करेंगे। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती तो वो IO वहाँ जाके उनसे एप्लीकेशन ले लेगा। तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि घर बैठे एक खातून की प्रॉब्लम हल हो रही है। मैम, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें देखने वाली ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप खातून होने की वजह से ये मत समझें कि आप कमज़ोर हैं। कमज़ोरी इंसान के दिलो दिमाग में होती है। एक सिस्टम जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इस टाइम पर लिए गए हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। सो अपने आप को अकेला ना समझें, अपने आप को कमज़ोर मत समझें। ये सिर्फ आपकी सोच होती है जो आपको कमज़ोर बनाती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मैम, आपकी कीमती वक्त था। नाज़रीन, जिस तरह कि आज प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरा जात कितने हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, टेक्नोलॉजी का कितना अहम किरदार है। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको बहुत